मेड નું કામ તમે નવું કરી લો ના મેડ કોણ अरे वो तो गाड़ी आप परिचय गए हो तो એટલે મેં આને કોલ કર્યો આ તો તમારા બાજુમાં છે શું ગયો પરિચય કે તમે કોલ એટલે આને પણ બોલાવ્યો આવો યાર નિરાશા તમે બોલાવો सर पार्टी ना आउटडोर ચાલો चलो guys, so we have done BRS till now, but BRS का थोड़ा पार्ट तो भी बाकी है because the part which is left out, say the last class we did extract, so remember same month extract, different month extract, we had done that, which is not there in 11 but it is there for your CA foundation. And what? Listen now. Sorry. Yeah, extract method we did. Now we are left with one more part of BRS, that's called adjusted cash book. So क्या बोलते हैं? Adjusted cash book is basically rectified cash book. तो जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं हुआ हम उसको रेक्टिफाई करते हैं और फिर बीआरएस बनाते हैं. वो ईयर एंडिंग पे किया जाता है, वो मैं करवाऊंगा रेक्टिफिकेशन चैप्टर करने के बाद. ओके, तो बीआरएस अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है. वी आर लेफ्ट विद वन लास्ट पार्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक व्हिच आई विल टेक आफ्टर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. ठीक है, वो आपका होगा अप्रैल में. अभी हम लोग एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं. Because last two lectures are left out, this Tuesday and next Tuesday. उसके बाद आपको holiday. Next week is the last week of CA Foundation. March first से आपको holiday CA Foundation. Full March and April का 8वां दिन. Exam, finals. पढ़ाई करो तो सेल्फ स्टडी का हॉलीडे है, फिर सीधा 9th अप्रैल विल स्टार्ट अलोंग विद 12th स्टैंडर्ड. ओके, नहीं 12th का सुबह, सीए का शाम 5:30 to 8:45 नहीं दो every day 2 lectures. बच्चे अर्धो कलाक ब्रेक 10 minutes. 10 minutes. सबको गए हो मांगे तो इच्छा नहीं ट्वेल्थ का वैकेशन के क्लास चालू होने, कॉलेज चालू होने के बाद वैकेशन में बोला ना 7:15 to 12:31 1 hour 45 minutes का कोर्स ही छोटा रहेगा. 1 hour 45 minutes अकाउंट, 1 hour 45 minutes मैथ्स एंड एक आध घंटा ही कोर्स. तो 12:30 तक सवारे 7 days એટલે સવારે 3 તક और 5 સવારે હવે ઇકો ऑलमोस्ट 4.5. अगर इको से नहीं कर रहे हो तो 3 घंटे 3 hours 30 वरना 4 घंटे और शाम को 3 घंटा 3 साढ़े 3. और उसके ऊपर सेल्फ स्टडी करना है, उसके ऊपर सेल्फ स्टडी करना है. मस्ती करो तो चलो रोज अभी कब आएगा. Don't pamper yourself too much. See, recently, if you have seen, AI is being developed so fast. Artificial intelligence इतना fast आ रहा है ना. There's no time for complacency. You have to work on your skills. खाली बुकिश नॉलेज काम का रहने वाला नहीं है. You have to be updated. जितना हो सके उतना मार्केट से अपडेट रहो. Make reading a habit.
खाली इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल नहीं करना है, कुछ उखड़ने वाला नहीं है उससे, ठीक है? मेक अ हैबिट, जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, अप्लाई करने का ट्राई करो and try to gain as much knowledge as possible. Is it clear? Now, see this new topic. ज्यादा कॉलेज चालू है से त्यारे जो लिखी है कॉलेज चालू होने के बाद अभी जैसा है ना MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंट्स, TTS मैथ्स ऑल्टरनेट डे हो जाएगा। ये डेली इवनिंग 7:30 to 9 अभी है, इन दिनों फिर डेली हो जाएगा, बट एक ही लेक्चर 7:30 to 9 वन लेक्चर डेली, एंड संडे को रहेगा 2। हाँ, सबका ऐसा ही है, 2 लेक्चर। 12th ना क्लासेस ना सीए ना क्लासेस बंदे 9 चलो नाउ बोला ना रेगुलर में कॉलेज में मेरे को नहीं आती मजा। अरे वो बहुत आशा करके Okay, now very important topic. Exam weightage is around 2 marks, sometimes 4 marks, sometimes 5 marks. Okay. Now this topic was not there for your 11th standard. Better pay attention. See, the name of the topic is capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts, revenue receipts. Now, why does this topic take so much of importance? Because we have done an error in rectification, that was error of principle. Remember? Anyone remembers what is error of principle? Mixing assets, long term with short term. Mixing long-term items with short-term items. That's what is error of principle, right? Now I told you that time only that present day world में error of principle error नहीं रहा. That's become a fraud. Still 80-85% of the companies do not show their results with true and fair view. And major jhol happens between these items. Capital expenditure are mostly classified as revenue, and revenue are classified as capital expenditure. What are capital expenditure? Expenditure on long-term assets, fixed assets. What are revenue expenditure? Expenditure on year-on-year expenses. तो झोल करना है तो ये चीज फर्स्ट प्लेस पे आता है कंपनीज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इंटेंशनली आपको फ्रॉड करना आप कर सकते हो, और ये डबल अटैक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज ऑफ सो मच इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल, रिलायंस जैसा कंपनी है, उसने लैपटॉप्स खरीदा है 5 करोड़ का अपने ऑफिसेस के लिए। तो लैपटॉप्स आर एसेट्स, शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज एसेट। 5 करोड़ का लैपटॉप टू कैश एसेट में जाना चाहिए था, उसने दिखा दिया एक्सपेंस में। उसने दिखा दिया एक्सपेंस में 5 करोड़ का एसेट था, दिखा दिया 5 करोड़ का एक्सपेंस। अब क्या होगा? एसेट बैलेंस शीट से गायब हो गया। नाउ यू नो फाइनल अकाउंट्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड एक एसेट बैलेंस शीट से गायब हो गया और उसके जगह एक्सपेंस आ गया पीएनएल में। रिपेयर्स का एक्सपेंस आ गया, या लेट्स से मेंटेनेंस का एक्सपेंस आ गया, व्हाटएवर इट इज, जो नाम उसको देना है। बुक्स को कुक करना है तो आपके हाथ में। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग नॉलेज helps you in dealing with finance. If you are good at accounting, you can easily identify the frauds in finance, या फिर कर भी सकते हो, करने का नहीं है बट कर भी सकते हो। तो वॉरेन बफेट has said, added knowledge of accounting makes a big difference in investment decisions. अगर आपको नॉलेज है अकाउंटिंग का तो आप एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो, आप एनुअल रिपोर्ट समझ सकते हो, what the company has shown in the books of accounts, and you can understand them and you can find out. Forensic accounting बोलते हैं, उसमें आप frauds को detect भी कर सकते हो just by looking at the annual report. Is it clear? So capital expenditure and revenue expenditure. Why this thing is of so much importance? Because present day world में majority of the झोल
Majority of the झोल happens around capital and revenue expenditure. Is it clear? Major आपके जो frauds होते हैं वो इसके अराउंड काम करते हैं. अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपने एक एसेट खरीदा था और आपने दिखा दिया एज एन एक्सपेंस. क्या होगा? इमेजिन करो P&L डेबिट में एक एक्सपेंस आ गया. एक्सपेंस आने की वजह से प्रॉफिट्स कम हो जाएगा. अच्छा, प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में कम चला जाएगा, तो नेट वर्थ कम हो जाएगा और सामने एसेट तो गायब ही है. तो योर बैलेंस शीट विल टैली बट इट विल बी अ श्रंक बैलेंस शीट. इट विल बी अ श्रंक बैलेंस शीट. हाउ इट विल बी अ श्रंक? श्रंक मतलब छोटा, कम वैल्यू दिखा रहा है. व्हाटएवर इट इज उससे कम दिखा रहा है. इसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व्स. क्या बोलते हैं? ये कंपनी में एसेट तो है लेकिन दिखाया नहीं है. Just to manipulate the share price on purpose, because the lesser the value of balance sheet, the lesser the profits, the lesser is the share price. You getting it? On the other hand, the opposite can also happen. Let's say a company is spending huge amount on maintenance or maybe repairs or maybe any other consultancy fees. बड़ा सा खर्चा है, let's say 50 करोड़ का एक्सपेंस है, लेकिन दिखा दिया एज एन एसेट. दिखा दिया एज एन. अब 50 करोड़ का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में दिखाया नहीं और एसेट में दिखा दिया. व्हाट विल हैपन? प्रॉफिट विल जंप. प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, नेटवर्थ बढ़ेगा. सामने एसेट तो आ ही गया बैलेंस शीट में उसको बैलेंस करने के लिए. तो बैलेंस शीट विल स्टिल टैली बट इट विल बी इन्फ्लेटेड बाय 50 करोड़. इट विल बी इन्फ्लेटेड बाय 50 करोड़. मतलब जो है उससे ज्यादा वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा. दिस इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग. दिस इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग का एप्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है. नेटफ्लिक्स पे बैड बॉय बिलियनर्स करके एक सीरीज है, उसमें रामलिंगा राजू का एक पार्ट है, एक एपिसोड है. विजय मल्ल्या का, रामलिंगा राजू का है, नीरव मोदी का है और अभी एप्स्टीन फाइल्स है. सो रामलिंगा राजू वाला एक एपिसोड है 1 आवर का. यू वॉच दैट. दैट इज द एप्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब है अंदर से खोखला लेकिन बाहर अच्छा अच्छा दिखाया. हाउ डू यू डू दैट? अंदर से खोखला है बिजनेस एंड हाउ डू यू शो दैट द बिजनेस इज स्ट्रांग एंड गुड इनफ? बाय शोइंग योर एक्सपेंसेस एज योर एसेट्स. एक्सपेंसेस को आपने एसेट बना दिया, ऑटोमेटिकली एसेट बढ़ गए बैलेंस शीट में. और क्योंकि आपने एक्सपेंस नहीं दिया, आपके प्रॉफिट बढ़ गए. प्रॉफिट बढ़ गए तो सामने नेटवर्थ बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया. तो जो है उससे बेटर दिख रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Just by twisting one single journal entry. एक जर्नल एंट्री आपने ट्विस्ट किया, करना था रिपेयर्स टू कैश, कर दिया मशीनरी टू कैश. पूरा शक्ल ही चेंज हो गया. दिख रहा है आपको? Obviously there are many restrictions, illegal है, सब कुछ है, but then CAs and all are involved in this. Okay? Audit firm, सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी, everyone is involved. पैसे के हिसाब से झोल करता है. इससे होता क्या है? बैलेंस शीट इन्फ्लेट हो गया, क्या प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, बिजनेस इज लुकिंग हेल्थियर. बिजनेस हेल्थी दिख रहा है तो क्या होगा? अभी स्टार्टअप्स काफी सारे, बोर्ड ने किया अभी रिसेंटली ऐसा, जो था उसे इन्फ्लेट करके फिगर्स दिखाए जस्ट क्योंकि उसको आईपीओ में हाई वैल्यूएशन चाहिए था. तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आप बुक्स ऑफ कंपनी बताते हो, रिजल्ट्स बताते हो. अब जो उधर इन्वेस्टर बैठा हुआ है वो आपका ऑडिट करने बैठेगा नहीं जाके आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, असलियत है भी कि नहीं, ये खोटा चल रहा है कि नहीं, इंडिया में अभी भी ये झोल चल रहा है. तो आपका बिजनेस का वैल्यू रहेगा 100 करोड़, आप मांगोगे इन्वेस्टर से 300 करोड़ जस्ट बाय कुकिंग द बुक्स ऑफ. तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन कैच कि एक्चुअली कुछ झोल है कि नहीं. ओके, नेचर समझना बहुत जरूरी है और प्योर कॉमन सेंस का बेस टॉपिक है. तो समझ में आया विंडो ड्रेसिंग और सीक्रेट रिजर्व में डिफरेंस क्या है? अगर आप जो है उससे कम बता रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं? और जो उससे ज्यादा बता रहे हो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग. और करना ट्विस्टिंग मेनली इन दो चीजों में ही हो जाता है. कैसे कर सकते हो? एसेट को आपने बता दिया एक्सपेंस, तो बिजनेस वैल्यू श्रंक. एक्सपेंस को बता दिया एसेट, बिजनेस वैल्यू. इज इट क्लियर? सो नाउ हाउ टू क्लासिफाई कि कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर? तो पहला कोर नेचर आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेनली व्हाट?
Fixed assets. Expenditure incurred on fixed assets is capital expenditure. It should be shown in the balance sheet. All capex is shown in the balance sheet asset. Capital expenditure shown in the balance sheet asset. Okay? And what are revenue expenditures? Current year का खर्चा. Year on year जो recurring basis पे होता है. Expenses. In short, revenue expenditure मतलब expenses. Example, purchases, rent paid, commission paid, salary paid, interest paid. Okay? आपका discount allowed, bad debts जितना आप करते हो trading P&L में, they are all what? Revenue expenditure. First point of difference is clear. दूसरा point of difference, सोचो, capital expenditure. Is it long term or short term? Long term in nature. एक बार कर दिया तो घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है ना. आपने एक ब्रिज बना लिया या एक बिल्डिंग बना ली या फर्नीचर ले लिया या फिक्सचर है या कार है या मोटर कार है या एसेट्स है तो घड़ी घड़ी होने वाले नहीं है. दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर. व्हाट अबाउट दीज? दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर. कॉमन सेंस. अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सो आपको में पूछा जाता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स कैपिटल और रेवेन्यू. आपको ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं. ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रटना नहीं है. कॉमन सेंस, लॉजिकल बेस देखा. और एक चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म है ऑब्वियसली, तो क्या ये घड़ी घड़ी होगा? वंस इन अ ब्लू मून होगा. बिल्डिंग बनाओगे, मशीन बनाओगे, प्लांट बनाओगे, घड़ी घड़ी तो करने वाले नहीं हो. तो दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. यस और नो? दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. व्हेरेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर व्हाट? रिकरिंग इन नेचर. नेचर इज रिकरिंग. घड़ी घड़ी होता है. सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, परचेज है, हर साल होने वाला है. बराबर है? यस और नो? So that is another point of difference you are having, कि whether an expenditure is recurring or non-recurring. उसके basis पे आप decide कर सकते हो. Fourth point, you can also check the value. You can also check the, ये theoretical काम का नहीं है. Theory में आपको पता ही नहीं है बड़ा value क्या है, छोटा value क्या है. Difference depends on business to business. So ये जो capital expenditure बड़ा value होगा कि छोटा value होगा? This is a big value. Assets है तो big value. Amount would be big amount, right? And over here, your amount would be small amount. Yes or no? ये theoretical part. अपना practically देखा जाता है. Theoretical कुछ काम का नहीं है value. Theoretically आपको main ये दो points काम के आएंगे. कौन से? या तो fixed asset और expenditure का distinction, या तो long term है short term. अगर long term benefits है तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है एक साल के अंदर वाला, जनरली लेस देन 1 year एंड दिस इज मोर देन 1 year, सो देन दैट मींस इट इज लॉन्ग टर्म एंड दिस इज शॉर्ट टर्म. दैट इज कैपिटल एंड दिस इज रेवेन्यू. मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आप सम्स में यूज करोगे वो ये रहना. इज इट क्लियर? क्योंकि रिकरिंग नॉन रिकरिंग भी ज्यादा काम का नहीं है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से लॉस बाय फायर. Loss by fire, where do you put it? P&L में जाता है. It's an expense, but it is so it is a possibility that खर्चा non-recurring है फिर भी expense है. So main point of difference is what? Benefit. If that thing is giving you long-term benefit, show it as an asset because थोड़ा थोड़ा depreciate करके matching concept. And if it is giving you short-term benefit, एक साल के अंदर benefit खत्म, then can I show it as an asset? अगर बेनिफिट ही शॉर्ट टर्म में एक साल से छोटा है, कैन आई शो इट एज एन एसेट? बिकम्स एन एक्सपेंस. सो आप जब प्रॉब्लम्स करने वाले हो, आपका मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहने वाला है? एसेट वर्सेस एक्सपेंस एंड लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म. ये आप एडिशनल पॉइंट कहीं कहीं डाल सकते हो. बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू तो काम का है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग डाल सकते हो. One more point of difference between capital expenditure and revenue expenditure. आपको पता है, मैंने आपको डिस्कस किया था कॉस्ट कंसेप्ट. व्हेनेवर यू बाय एनी एसेट, एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज और मैन्युफैक्चर ऑफ दैट एसेट, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? Add up to the cost. So expense incurred on purchase or manufacture of asset. Purchase or manufacture of asset. It is a capital expenditure. All of you know that.
सेकेंड हैंड मशीन खरीदा, रिपेयर करवाया, न्यू मशीन खरीदा, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, राइट? ये सब क्या होता है? ऐड हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उसका रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, ये सब क्या है? रिपेयर्स, रिन्यूअल, ये सब क्या है? सर्विस, रिपेयर, रिन्यूअल, खरीदते वक्त नहीं, बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ये वन टाइम है, घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है, एसेट के साथ ही चिपक के रहेगा पूरा लाइफ टाइम तक। और ये है एसी खरीदा, एसी का यूनिट आया 50,000 का, उसमें ट्यूबिंग पाइपिंग मिला के और 10,000, कितने का पड़ा? 60,000। दैट इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट। बट एक बार एसी चालू हो गया, उसके बाद हर 4 महीने आप सर्विस करवा रहे हो, कुछ खराब हो गया तो रिपेयर करवा रहे हो, मेंटेन करवा रहे हो, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? समझ में आ रहा है सबको? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, एंड इधर काफी स्टूडेंट्स अटकते हैं, सुनो क्या है? अगर आप कोई एसेट है, ठीक है, कोई एसेट है, उस एसेट पे आप रिपेयर करवा रहे हो, रिन्यूअल करवा रहे हो, मरम्मत करवा रहे हो, उसको सर्विस करवा रहे हो, और अगर वो खर्चा, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, अगर वो खर्चा एसेट को नेगेटिव से न्यूट्रल पे ला रहा है, नेगेटिव से न्यूट्रल पे ला रहा है, तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर वो खर्चा एसेट को न्यूट्रल से पॉजिटिव पे लेके जा रहा है, फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ा रहा है, देन इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आपका एसी बारिश में जंग लगने की वजह से खराब हो गया, ठीक है, आपने उसको रिपेयर करवाया, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपका एसेट खराब था, आपने उसको नेगेटिव से न्यूट्रल पे लाया, उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्यूचर बेनिफिट नहीं हुआ, ना एसेट का लाइफ बढ़ा, ना एक्स्ट्रा कोई फायदा होने वाला है, ना आपके फ्यूचर के खर्चे कम हुए, जितना है उतना ही चलेगा, नहीं करवाते और जल्दी खराब हो जाता, तो आपने खराब एसेट को ठीक करवाया, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट टेक वन मोर एग्जांपल, आपका रूफ है, फैक्ट्री का रूफ है या मशीनरी का रूफ है या फैक्ट्री शेड का रूफ है, जो तालपत्री का बना हुआ था, एस्बेस्टोस या तालपत्री, आपको पता है, लीकेजेस हो रहे थे, आपने वो रूफ को तोड़ के कंक्रीट रूफ बना दी, वो रूफ को हटा के आपने क्या बना दी? कंक्रीट रूफ। कंक्रीट मतलब सीमेंट का बना दिया आपने। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये करने से उसकी लाइफ, फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ गए। सो इट इज नॉट दैट कि वो 1 साल में बेनिफिट एक्सपायर हो जाएगा, उसका बेनिफिट लंबे टाइम तक चलता रहेगा। सो दिस खर्चा शुड बी क्लासिफाइड एज एन एसेट and not as an expense. I'll give you one more example. आपका कार है, you drive a car, बिजनेस के लिए कार है, वैन है, डिलीवरी वैन है, आपने कार ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, आपने उसको रिपेयर करवाया, दैट इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ आपका कार ठीक ठाक चल रहा है, आपने उस कार में सीएनजी किट इंस्टॉल करवा दी, अब क्या हो गया? दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सीएनजी किट क्या करती है? आपके खर्चों को कम कर देती है। पेट्रोल इज मोर एक्सपेंसिव, सीएनजी इज लेस एक्सपेंसिव। पेट्रोल का माइलेज आता है 1 लीटर में 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, सीएनजी देता है 30-35 किलोमीटर, समटाइम्स 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, प्लस द कॉस्ट इज आल्सो लेस। तो इसमें क्या हो गया? आपका फ्यूचर बेनिफिट आया कि नहीं आया? बट वेरएज कभी लगता है कि सर डैमेज कार था, मैंने तो ठीक करवाया था, फ्यूचर में ज्यादा चलेगा। नहीं, डैमेज कार था, उसको रिपेयर करवाया, उससे उसका फ्यूचर बेनिफिट बढ़ने वाला नहीं, उतना ही है। वो अच्छा खासा कार चल रहा था तो उतना ही चलता, तो बीच में खराब हो गया तो आपने उसको ठीक करवाया। गिव यू वन मोर एग्जांपल। आपके मशीन में कुछ खराबी हो, प्लांट है आपका, कुछ प्रोडक्शन है, बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या
आप पैकेट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कुछ भी है आपका, कुछ भी पाइपिंग प्लम्बिंग का कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स कर रहे हो, उसका उस मशीन में कुछ खराबी आ गई, कुछ पार्ट आपने डैमेज था, रिप्लेस करवाया, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन द सेम एग्जांपल, वो मशीन खराब हो गई, उसका पार्ट डैमेज था, आपने वो पार्ट रिप्लेस करवाया, लेकिन अब ऐसा पार्ट डलवाया जिससे पावर सेविंग हो रही है, जिससे वो मशीन पहले 8 घंटे में 100 यूनिट कंज्यूम कर रही थी, अभी 60 यूनिट ही कंज्यूम कर रही है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड। तो फर्क क्या है दोनों में, समझ में आ रहा है? इफ यू आर ब्रिंगिंग द एसेट फ्रॉम नेगेटिव टू न्यूट्रल, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर वो खर्चा एसेट को न्यूट्रल से पॉजिटिव जोन में फेंक रहा है, मतलब उससे फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, उससे लाइफ बढ़ रही है, उससे फ्यूचर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात समझना है? एक थिएटर है, थिएटर में आपने एक बेटर प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया, जिससे वो पता है यूएफओ मूवीज वगैरह आ गया, पहले मैनुअल प्रोजेक्टर्स थे, तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट्स हो रहा है, उससे वो प्रोजेक्टर ज्यादा चलता है, उसको मेंटेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सैटेलाइट मूवीज डायरेक्टली ऑनलाइन करके यू कैन शो इट इन द थिएटर। बट अभी थिएटर में कभी कभी पता है आग लग गई थी, और इधर ही हुआ था अपना ओडियन में, तो 5-6 साल हो गया, थर्ड स्क्रीन के ऊपर वाले में आग लग गई थी, तो तब से फायर एक्सटिंग्विशर्स कंपलसरी गवर्नमेंट वाला छक मार के रखो। हर एक थिएटर में आप देखोगे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स कंपलसरी रखना ही पड़ता है, कंपलसरी है। व्हाट इज दैट? अब देखोगे आप, सिलेंडर तो वैल्यूएबल आइटम्स है और पड़े रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, बट स्टिल इट इज व्हाट? व्हाई? बिकॉज नो फ्यूचर बेनिफिट। आपको खाली लॉ कंप्लाई करने के लिए वो झक मार के खर्चा करना पड़ रहा, उससे कोई फायदा होने वाला, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आ रहा है कुछ? आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपका खुद का प्लॉट एरिया था 2 एकड़ का समझो, उस पे कोई गुंडा आके टेंट वेंट लगा के बोल दिया कि हम लोग का है, जो करना कर। आपने लॉयर अपॉइंट किया, कोर्ट केस किया, लॉयर ने लड़ा, कोर्ट केस जीता और आपकी जमीन आपको वापस दिलाई। दिस इज व्हाट? स्टिल अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर जमीन तो आगे फ्यूचर नहीं बेटा, आप ही की थी, कोई छीन के लेके गया था, आपको मिल रही है वापस। दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप जमीन पे आप कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, कुछ शेड वेड बना रहे हो, कुछ फैक्ट्री शेड बना रहे हो, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर कट हिंट दिया होगा, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है कि ये फ्यूचर बेनिफिट है कि नहीं। ओके, अगर एक गुंडा वाला टेंट तैयार है શું? ટેન્ટ તૈયાર છે હા અને અમને મળે હા ટેન્ટ ટેન્ટ એટલે રહેવા માટે ટેમ્પરરી સેટલમેન્ટ બનાવી, એ ટેન્ટની વેલ્યુ શું છે? નાખવાનું છે કે ત્યાં રહેવાનું છે કે થોડી सो लेट्स ट्राई। ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आपको लिखते जाना है। टर्न टू पेज नंबर, आज बहुत कुछ लिखना है, चलो एक पेज नंबर 2 ऑफ ऑल्स में भी आएगा, 4 और 5 मार्क का क्लासिफिकेशन अलग से भी आता है। इंडेक्स में देखो ना, 16 चेक द इंडेक्स, पेज नंबर है 16। देखो टेक सम नंबर 1, फर्स्ट सम, फर्स्ट प्रॉब्लम, पेज 18, फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं नोटबुक, जो भी मैं बोल रहा हूँ प्रॉपरली नोटबुक में लिखना है, नीटली
कैसे लिखना है समझो उसको। ये अभी ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स आता है 2 मार्क के लिए। 1 मार्क होता है आपका ट्रू या फॉल्स लिखने का, 1 मार्क होता है रीजन। ठीक है, रीजन आप नाउ आपका रीजन है ना 1 से 2 लाइन का रहेगा, इनफ है, बट इट शुड मेक सेंस। इज इट क्लियर? और वो ही 2 लाइन रेपिटेटिव बेसिस पे हम लोग लिखने वाले हैं। बहुत सारे रीजन में आएगा, आपको ऑटोमेटिकली जजमेंट आ जाएगा क्या लिखना है। ओके, मेनली विल बी डिस्कसिंग ऑन दीस 2 पॉइंट्स हर एक में। ओके, नहीं, फर्स्ट वाला पढ़ो। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओवरऑल मतलब रिपेयर एक्सपेंडिचर on second hand machinery purchase is a revenue expenditure. Why? बाद में Asset के purchase पे हो रहा है, one time हो रहा है ना, to bring the asset to usable condition। हेलो, एसेट को खरीदा और उसको वर्किंग कंडीशन, उसको बटन दबा के चालू किया, तब तक का सारा खर्चा क्या है? एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार एसेट यूजेबल कंडीशन में आ जाए, उसके बाद जो आ रहा है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लिखो, कैसे लिखना है ध्यान से सुनो। फर्स्ट वन राइट डाउन फॉल्स, फर्स्ट वन लिखो फॉल्स, अंडरलाइन इट, उसके नीचे लिखो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। शट अप नाउ, राइट डाउन फास्ट। फॉल्स लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ। फॉल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या कौन सा? लिखो फॉल्स, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज it is a capital expenditure because expense incurred on purchase or manufacture of asset, expense incurred on purchase / manufacture of an asset will give long term benefits, and is non-recurring in nature. Will give long-term benefits and is non-recurring in nature. Will give long-term benefits and is non-recurring in nature. Expense incurred on purchase or manufacture of asset. It is an expense incurred on purchase or manufacture of asset which will give long-term benefits and is non-recurring in nature. Main emphasis will be on long-term benefits या future benefits. Logically समझो, अगर कोई चीज future में benefits देने वाली है, I'll put it in the asset. तो उसका future benefit है, थोड़ा थोड़ा करके उसको write off करके P&L में डालेगा। अगर उसका benefit ही short term है, I'll put it under revenue, P&L. Is it clear? Second one, money spent to reduce working expenses is a revenue expenditure. इसका मतलब समझा? Money spent to reduce working, मतलब ऐसा खर्चा जिससे working expenses कम हो रहा है, मतलब future benefit बढ़ेगा ना? तो क्या है ये? तो लिखो false. It is a capital expenditure. It is a capital expenditure. False. It is a capital expenditure as it will have future benefits. It is a capital expenditure as it will have future benefits. It will have future benefits. That's it. Enough. ओवर वर्ड्स में आप लिख सकते हो, यही पॉइंट्स घूम फिर के आने वाले हैं। 2-4 शब्दों में आपको नैक आ जाएगा। थर्ड वन, 1 line 2 line reasons are enough. Okay, 1 mark का ही है। 1 mark for true false, 1 mark for reason. Legal fees to acquire a property is a capital expenditure.
Legal fees to acquire a property is a capital expenditure. True, because acquire मतलब खरीदने पे हो रहा है. मैंने जो आपको फ्यूचर वो नेगेटिव टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, वो एक्सिस्टिंग एसेट का खर्चा है. खरीदते हुए हो रहा है तो वो हमेशा क्या होने वाला है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐड अप टू द कॉस्ट. तो लिखो ट्रू. हाँ, ट्रू में भी रीजन, फॉल्स में भी रीजन, दोनों में रीजन लिखना है. लिखो ट्रू, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. True, it is a capital expenditure as it is essential to bring the asset to usable condition. As it is essential to bring the asset to usable condition. As it is essential to bring the asset to usable condition. Full stop. You can write it is non-recurring in nature. It is non-recurring in nature. It is non-recurring in nature. Incurred during the purchase of asset is not. Incurred on purchase of asset. ये तो मैं आपको वेरिएशंस बता रहा हूँ. आप इसमें से कोई भी पॉइंट्स लेके ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. समझ में आया? नेक्स्ट. Amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the first factory site belong to the plaintiff is a capital expenditure. ये वही एग्जांपल है. plaintiff मतलब हमने बोला लॉयर को फीस दिया कि हमारा जमीन छुड़ा के हमको दे दे. This is what revenue expenditure. क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फायदा हुआ नहीं, कोई एक्स्ट्रा फायदा हुआ नहीं. तो लिखो false, it is a revenue expenditure. False, it is a revenue expenditure because false, it is a revenue expenditure because there are no future benefits after getting back the land. Factory site, whatever. Because there are no future benefits after getting back the factory site. False, it is a revenue expenditure as there are because there are no future benefits after getting back the factory site. That's it. इसमें और कुछ नहीं आएगा. Next. Amount spent for replacement of worn out part of machinery is a capital. Worn out मतलब खराब. Is a capital expenditure. False. It is a revenue. लिखो. False, it is a revenue expenditure. False, it is a revenue expenditure. Reason क्या लिखोगे? No future benefit. Very simple. Okay, as it will not have any future benefits. As it will not have any future benefits. False, it is a revenue expenditure as it will not have any future benefits. Any future benefits. Next. Expense incurred on the repairs and whitewashing of the for the first time of purchase of an old building is a revenue expenditure. First time of purchase of an old building. Capital. Why? Purchase of asset, right? Existing पे होता तो it would have been revenue. Got the difference? Existing building पे आप painting करवा रहे हो, repair करवा रहे हो, that's a revenue expenditure. लिखो. False. It is a capital expenditure. False. It is a capital expenditure as it is incurred on manufacture / purchase of a fixed asset. As it is incurred on manufacture / purchase of a fixed asset and has long-term benefits. As it is incurred on manufacture / purchase of a fixed asset and has long-term benefits. Better add that asset का purchase वाला part because खरीदने पे हुआ. Long term still you can ignore this. Then next one. Expenses in connection with obtaining a license for running a cinema is a capital. The cinema is a theater. True.
Why? You need that license. Without license, you cannot start a theatre, can you? No. You can't, right? So write down. It is true. True, it is a capital expenditure as license is essential to start a cinema. As license is essential to start a cinema. As license is essential to start a cinema. And non-recurring. Non-recurring in nature. Non-recurring in nature. But tell me, what about the renewal fee of this license which you pay every year? That is just to maintain it. No future benefits. Eighth one, an amount spent for construction of ध्यान से पढ़ना. Amount spent for construction of temporary huts which were necessary for the construction of a cinema house and were demolished once the cinema house was ready is a capital expenditure. इसका मतलब समझे आप? जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, बिल्डिंग बना रहे हो, सिनेमा हाउस बना रहे हो तो शेड्स बना रहे हो ना वर्कर्स के स्टे के लिए, हर जगह होता है. फिर बनने का डिमोलिश करते हो, तो इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल. सुनो ध्यान से. Whenever you start building any asset from scratch, in fact, अगर यहाँ पे ओडियन रिनोवेट हो रहा है, तो पुराना ओडियन तोड़ने से लेके नया ओडियन रेडी होने तक जो भी खर्चा हुआ है ना, दैट इज ऑल कैपिटल. ये तो क्या बोल रहे हैं वो शेड्स वेड्स का, मैं तो बोल रहा हूँ उससे पहले पुराना बिल्डिंग भी डायपिलेट करते हो ना, तोड़ते हो ना, रीडेवलपमेंट के वक्त पुराना टूटता है फिर नया बनता है. तो पुराने का तोड़ने से लेके फिर वो शेड वेड, फिर नया का पिलर्स, कंक्रीट मिक्सचर, वेजेस, लेबर, वाइट वॉशिंग, ओसी, सीसी, सब खर्चा जब तक वो यूजेज के लिए रेडी नहीं होता, वो सारा खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझ में आया? याद रखना. सो देखो, ट्रू है ना? Yes. True, it is a capital expenditure because it is an expense incurred on purchase / manufacture of a fixed asset. It is an expense incurred on purchase / manufacture of a fixed asset. Full stop. It is non-recurring in nature with future benefits. It's non-recurring in nature with future benefits. This an expenditure incurred on purchase / manufacture of a fixed asset. Full stop. It is non-recurring in nature with future benefits. It's non-recurring in nature with future benefits. Next. Sixth question. All of you take sum number 6. Are the following expenditures capital in nature? You have to answer. Now this is not true or false. You have to decide whether these expenditures are capital or revenue nature. Sixth question. These are module sums by the way, okay? The first one was module. This is also a module question. Same. हाँ जी, हाँ. One question ना बे आंसर भी सकते कि एक question. ना ना, वही चाहिए. I told you, I gave you all the variety variations. You can place it in your own words. आगे पीछे reason आप adjust करके डाल सकते हो. Meaning कन्वे होना चाहिए. देखो, sixth question. First one, Messrs APC and Company runs a restaurant. मिला सबको? Page 90. They renovate some of the old cabins. Restaurant है, पुराना cabins उन्होंने renovate किया. Because of this renovation, some space was made free and the number of cabins was increased from 10 to 13. The total expenditure was 20,000 rupees. Got the reason why? भले renovation है, but cabins बढ़ेगा, business बढ़ेगा, profit बढ़ेगा, future benefits. बराबर है? तो लिखो. Expenditure amount लिखना है अभी. Expenditure of 20,000 rupees is a capital expenditure. Amount दिया तो amount के साथ लिखने का. Expenditure of 20,000 rupees at true or false નથી. આ ઓલું 5 માર્ક છે. 5 માર્ક માટે આવે ને તો આવી ના પૂછશે તમે. Expenditure of 20,000 rupees is a capital expenditure as increase in the number of cabins, as increase in the number of cabins will have future benefits. As increase in the number of cabins will have future benefits.
You can also write increase in the number of cabins will have long-term benefits. Yeah, increase in the number of cabins will have future benefits. Yeah, long-term benefits. Second, Messrs New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay the installments. Installment वाला मालूम है ना? टुकड़े टुकड़े में पैसा चाहिए. 5 customers did not pay the installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expenses. You got the point? वसूली भाई को हायर किया इंस्टॉलमेंट रिकवर करने के लिए या लीगल एक्सपेंस. उससे कोई बेनिफिट हुआ फ्यूचर का? आप ही का पैसा था, आप ही को मिला. ओके, तो लिखो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. It is a revenue expenditure. As such, legal expenses will not have any future benefits. It is a revenue expenditure. As such, legal expenses of recovery will not have any future benefits. As such, legal expenses of recovery will not have any future benefits. As such, legal expenses of recovery will not have any future benefits. Third one. Revenue. Revenue expenditure. Messrs Balawan Company of Delhi purchased a machinery from Messrs Shah and Company of Ahmedabad. Messrs Balawan Company ने मशीन खरीदा है शाह से. Balawan Company spent 40,000 for transportation of such machinery here ends on 31st December. What is that 40,000? क्या लिखोगे? लिखो, ट्राई करो. क्या लिखोगे? It is a amount लिखना. Expenditure of rupees 40,000 is a capital expenditure. ऊपर वाले में भी लिखना 10,000. Expenditure of 40,000 is a capital expenditure. As it is incurred on purchase/manufacture of a fixed asset with long-term benefits and non-recurring. As it is incurred on purchase/manufacture of a fixed asset with long-term benefits and it is non-recurring. As it is incurred on purchase/manufacture of a fixed asset with long-term benefits and it is non-recurring. Non-recurring. Okay? Sir, if Amma Airport के Shah and Company paid 40,000. तो अपना है. If you लखेलो के Shah and Company. तो अपना asset. 40,000. On behalf of us. No. Carriage outward માટે સબલ એક્સપેન્સિવ રેવન્યુ. તો એ આપણું થયું જ નહીં ને. રિયર ના બલદેવ રિયર શાહ. અમે બલદેવે મારાથી પરચેસ વોટએવર. बलाव ने हमसे खरीदा. બલાવે हमसे खरीदा. तो we paid 40,000 for some reason carriage outward. तो our revenue. Because for us it is not an asset. For us these are no goods. We are dealing in them. We are sellers. हमारा रेवेन्यू. हमने एसेट खरीदा नहीं. Then question number 2 you take. Look at question number 2. The answer दिख रहा. Sum number 2. Focus now. देखो उधर. First one. You have to classify whether they are capital or revenue expenditures. Okay. First one. Expenses incurred in connection with obtaining a license for starting a factory. देखो, it is a capital expenditure. As license is essential to start a factory. As license is essential to start a factory. We're going to add it is non-recurring in nature. As license is essential to start a factory. It is non-recurring in nature. It is non-recurring in nature. Next. और एक पॉइंट ध्यान रखना कैपिटल रेवेन्यू के लिए. सुनो ध्यान से. गुड्स है ना, गुड्स. गुड्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, कोई भी, इट इज ऑलवेज रेवेन्यू. गुड्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, इट इज ऑलवेज, क्योंकि गुड्स हर साल का काम है. हर साल खरीदोगे, हर साल बेचोगे, हर साल आएगा, हर साल जाएगा, राइट.
तो गुड्स का कोई भी हो खर्चा, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, कैरेज का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, लॉस बाय फायर फ्लड थेफ्ट हो गया, सैंपल्स पर जो खर्चा गुड्स से रिलेटेड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट? Revenue and revenue because recurring. Okay. So 1000 paid for removal of inventory to a new site. Inventory मतलब stock. एक साइड से दूसरे साइड पे लेके गया. बराबर. Goods related जो खर्चा it is always going to be revenue. याद रखना. ये goods are recurring. तो लिखना it is a rupees 1000 paid for removal of inventory is a revenue expenditure. Rupees 1000 paid for removal of inventory is a revenue expenditure, as it is recurring in nature with no future benefits. As it is recurring in nature with no future benefits. Removal of inventory 1000 rupees is a revenue expenditure, as it is recurring in nature with no future benefits. You see to it, you put this term for most of the items, future benefits and no future benefits. That is the point of difference, mainly. No future benefits. Third one, rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency. समझ में आया? The hint is there, fuel efficiency. अगर फ्यूचर में बेटर हो रहा है, it is a capital expenditure. तो लिखो रुपीज 5000 स्पेंट ऑन रिंग्स एंड पिस्टन्स. रिंग्स एंड पिस्टन मतलब पार्ट होता है ना, वैसे ऐसे जाता है, रिंग बोलते हैं. पिस्टन मतलब उसको पुश करता है. रेलवे में पहले पुराने रेलवे में होता था. रिंग्स एंड पिस्टन्स रुपीज 5000 स्पेंट ऑन रिंग्स एंड पिस्टन्स इज अ capital expenditure, as it increases future benefits due to fuel efficiency. As it increases future benefits due to fuel efficiency. As it increases future benefits due to fuel efficiency. As it increases future benefits due to fuel efficiency. फोर्थ वाला एक स्किप करो, बताता हूं क्या है, 3 लाइन छोड़ दो. फिफ्थ वाला देखो. A factory shed was constructed at a cost of rupees 1 lakh. Sum of 5,000 had been incurred on construction of temporary huts to store building material. Full? कि 5,000? 5,000. What about 1 lakh? Full. So write down entire amount of 1,05,000 rupees. पूरा लिखने का. Full entire amount of 1,05,000 rupees is a capital expenditure. Reason क्या लिखोगे? Incurred on purchase या manufacture of a fixed asset. Incurred on purchase / manufacture of a fixed asset with future benefits. Incurred on purchase or manufacture of a fixed asset with future benefits. Got it? Now see the fourth one. Money paid to Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) 8,000 for installing a new telephone in the office. ये एसेट नहीं है, ये ना अभी आपको पता नहीं होगा क्योंकि MTNL का डब्बा भी है किसी घर पे. आई डोंट थिंक सो. क्योंकि क्या होता था, MTNL का कैसे चलता था, वो डब्बा इंस्टॉल करके जाता था ना, तो यू हैव टू पे सम डिपॉजिट. टेलीफोन डिपॉजिट हम लोग करते थे ना. दिस 8,000 इज टेलीफोन डिपॉजिट एंड व्हेन यू सरेंडर दैट डब्बा यू गेट दैट डिपॉजिट बैक. So just like security deposit, when you take a place on rent, आपको क्या देना पड़ता है? Security deposit. जब आप वो place surrender करते हो तो वापस आ जाता है, बराबर है? या फिर लॉकर डिपॉजिट, स्विमिंग पूल या किधर इमेजिका वगैरह गए, you give that locker deposit, you surrender your locker, you get the deposit back, right? Remember, fixed deposit, any type of deposit, it is not a capital expenditure, neither it is revenue. वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट they are called as assets, but they are not capital expenditure, neither they are
रेवेन्यू. इज इट क्लियर? जरूरी नहीं कि सब कुछ कैपिटल रेवेन्यू में आए. जैसे कि शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स. दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स. कैश हो गया, बैंक हो गया, दे आर नॉट कैपिटल. यू शो इट एज एन एसेट but they are not capital expenditure, neither they are revenue expenditure. They are called financial assets. Is it clear? तो इधर रीजन क्या लिखना है फोर्थ वाले में? डिपॉजिट गिवन फॉर टेलीफोन. डिपॉजिट रुपीज 8,000 गिवन फॉर टेलीफोन. डिपॉजिट रुपीज 8,000 गिवन फॉर टेलीफोन is neither capital expenditure nor रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये डेफर्ड भी नहीं है. डेफर्ड अलग होता है. डेफर्ड क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड किया ना, खर्चा है जो 2-4 साल में यूज हो जाएगा. ये यूज नहीं हो रहा है. ये पूरा का पूरा आपका टेलीफोन सही सलामत वापस हो गया, आपको वापस मिल जाएगा पूरा डिपॉजिट. हेलो. सो क्या लिखा था? डिपॉजिट रुपीज 8,000 पेड फॉर टेलीफोन इज नाइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फुल स्टॉप. 8 is a type of deposit. It is a type of deposit. ब्रैकेट में लिखना asset. It is a type of deposit. ब्रैकेट में लिखना asset. फर्क समझा? वैसे ही कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड इंटरेस्ट, they are also not capital expenditure, neither revenue. They are called prepaid expenses. They are called prepaid. तो deposits हुआ, shares, bonds, debentures, they are financial assets. ये हो गया prepaid expense. Is it clear? What happened? Repair, renewal, service time. चलो. Service cost, maintenance. Look at third question. Star mark करना very very important sir. Third वाला देखो. Good Pictures Limited. ये थर्ड क्वेश्चन है ना, पूरा एक क्वेश्चन ही है, एक ही कंपनी का पूरा डिटेल्स दिया हुआ. ये भी मॉड्यूल सब है. थर्ड वाला. गुड पिक्चर्स लिमिटेड constructs a cinema house and incurs the following expenditure the first year ending 31st March 2016. इसने थिएटर बनाया है और पहले साल में इसका ये खर्चा हुआ है. फर्स्ट वन. Second hand furniture worth 9,000 was purchased. Repainting of the furniture costs 1,000. Furniture was installed by the own workman. Wages being 200. सारा कि wages, revenue और बाकी सारा everything because it is on purchase of a new asset, a second hand asset. Purchase of an asset पे हो रहा है. तो लिखो पूरा अमाउंट के साथ. Entire amount of 10,200 rupees is a capital expenditure. Entire amount of 10,200 is a capital expenditure as it is incurred on purchase / manufacture of an asset. Entire amount of 10,200 is a capital expenditure as it is incurred on purchase / manufacture of a fixed asset. Purchase / manufacture of a fixed asset. You can write आगे long term benefits, non recurring. Necessary to bring the asset to usable condition. Can add it up. 1 to 2 lines enough. Next. ध्यान से पढ़ना. Expenses in connection. Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema worth 20,000. मिला? Are you listening? Expenses in connection with obtaining a license for running a cinema worth 20,000. During the course of the year, the company was fined ₹1,000 for contravening rules. Contravening मतलब violating rules. Renewal fee of 2,000 for the next year was also paid. अब तीनों सेम है, तीनों अलग है, दो अलग है, एक सेम है, क्या सी? दो सेम है, एक्चुअली तीनों अलग बताता हूँ. देखो ₹20,000 spent on license capital expenditure. लिखो ₹20,000 spent on license
is a capital expenditure as it is essential to start a cinema. Rupees 20,000 spent on license is a capital expenditure as it is essential to start a cinema. As it is essential to start a cinema. आगे लिख सकते हो future benefits non recurring, ठीक है. Second one, rupees 1,000 spent as a fine. Rupees 1,000 spent as a fine is a revenue expenditure. Rupees 1,000 spent as a fine is a revenue expenditure as it has no future benefits. Rupees 1,000 spent as fine is a revenue expenditure as it has no future benefits. As it has no future benefits. Third one, rupees 2,000 renewal fee of 2,000 for next year. Renewal fee of 2,000 paid for next year is a prepaid expense. Is a prepaid expense. Bracket में लिखना revenue in nature. Rupees 2,000 paid for. Renewal fee of next year is a prepaid expense. Bracket में लिखना revenue in nature. तो revenue expenditure नहीं है, it's a prepaid है. वो revenue बनेगा next year. इस साल revenue नहीं है, वो कब का है? इस साल का क्या है? Prepaid. Prepaid is an asset right now, but neither capital nor revenue. You can write prepaid expense bracket पर revenue in nature. वो नहीं भी लिखा revenue in nature चलेगा, खाली prepaid expense लिखा तो भी चलेगा. Got it? तीनों में फर्क समझा? Prepaid भी खर्चा ही है, but इस साल का नहीं है, अगले साल का आएगा. Prepaid, okay? Next year का revenue. इस साल ऐसे. Next one, third one. मतलब बोला ना सारा का सारा asset capital revenue नहीं होना है. सारा का सारा asset is not capital expenditure. Hello. Cash, bank, financial asset, fixed deposit, prepaid expense. These are not capital expenditure. Temporary, इधर में लिखा हुआ है fixed assets. Only fixed assets are capital. जो appreciate हो. Fire insurance 1,000 was paid on 1st October 2015 for 1 year. When is the year ending? अब गम्मत है सर. हाँ, आपने तो एक साल का पे किया है, अक्टूबर में पे किया है. तो मार्च तक का क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और मार्च के बाद का? लिखो. 500 rupees of fire insurance of current year is a revenue expenditure. 500 rupees of fire insurance. 500 rupees of fire insurance for current year is a revenue expenditure. 500 rupees of fire insurance for current year is a revenue expenditure. Full stop. And recently, as it is recurring in nature, short में लिख दो recurring in nature. Recurring in nature. And 500 rupees paid for next year is what? Prepaid expense. Bracket में you can write revenue in nature. Bracket में you can write revenue in nature. 500 rupees paid for next year. 500 rupees premium paid for next year is a prepaid expense. Is a prepaid expense. Revenue in nature. Got the difference? समझ में आया पक्का? 1st October को पे किया था. आधा इधर आधा उधर. Fourth one is easy. Temporary huts were constructed costing 1,200. They were necessary for construction of cinema. They were demolished once the cinema was ready. Capital expenditure. Write down. Amount of 1,200. 1,200 rupees for temporary huts is a capital expenditure. 1,200 rupees for temporary huts is a capital expenditure as it is incurred on manufacture slash purchase of a fixed asset. As it is incurred on manufacture slash purchase of a fixed asset with long-term benefits. As it is incurred on manufacture slash purchase of a fixed asset with
long-term benefits. Long-term benefits. Clear? Got it? Incurred on purchase / manufacture of a fixed asset with long-term benefits, non-recurring. You bet. अभी आ रहा है रैंक लिखने का, क्या पॉइंट्स लिखना है? 3 पॉइंट में खेल रहे हैं हम लोग. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैन्युफैक्चर फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म, नॉन रिकरिंग. वो शॉर्ट टर्म, रिकरिंग, नो फ्यूचर बेनिफिट्स. बराबर है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, नो फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स. वन टाइम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड ये मेंटेनेंस ऑफ इट. नाउ सी दिस वन. सम नंबर 7 देखो, सम नंबर 7. सम नंबर 7 आप उधर ही लिखो, शॉर्ट में पेंसिल से रीजन उधर ही लिखते जाओ, ठीक है? सम नंबर 7 पेंसिल लो, पेन लो, चलेगा. रीजन तो पता है आपको, शॉर्ट में बाजू में लिख लो. ओके, फुल स्टेटमेंट्स बना सकते हो ना, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, उधर ही रीजन. एग्जांपल है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, सम नंबर 7 उधर ही लिखते जाओ शॉर्ट में. पेंसिल पेन जिससे लिखना लिखो, शॉर्ट पे लिखते जाओ, उधर ही रीजन लिखते जाना. स्टेट whether the following are revenue or capital or deferred revenue expenditure or receipts. Also state capital revenue profits or losses whenever applicable. अब सुनो ध्यान से, हमने सीखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने सीखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म हर साल. नेचर पे ध्यान दो, नेचर पे. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था शुरुआत में साल के, कैलकुलेटर. सर मेरा कैलकुलेटर 2 साल चल जाता है, 3 साल चल जाता है, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? नो, इट इज स्टिल अ नेचर ऑफ दैट आइटम इज इंपॉर्टेंट. ठीक है? सर मेरा कपड़ा 10 साल चल जाता है, 10 साल तक पहनता हूँ एक ही शर्ट, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? नो, इट इज स्टिल अ रेवेन्यू. बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यूज होते रहता है हर साल. समझ में आया? अभी सुनो, देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बीच का आज ही समझ मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अभी हमने पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. व्हाट वाज दैट? डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है? इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो एसेट नहीं है, वो खर्चा है. वो क्या है? खर्चा है, लेकिन बेनिफिट मोर देन 1 ईयर का है. सर वो तो प्रीपेड एक्सपेंस हुआ. तो प्रीपेड और डेफर्ड में छोटा सा फर्क है. प्रीपेड और डेफर्ड में क्या फर्क है? आज ही बताया था. प्रीपेड में अमाउंट और टाइम पीरियड सर्टेन होता है, डेफर्ड में अप्रोक्सीमेट रहता है, राइट? तो कभी कभार आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर दिया, दैट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हिट का होगा द वर्ड हैवी, द वर्ड हैवी. हैवी एडवर्टाइजमेंट, नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, हैवी एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू. 2, 3, 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा. अनदर एग्जांपल, हैवी लीगल एक्सपेंस. हैवी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उससे थोड़ा सा, इतना सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो. ठीक है? वो भी है बहुत इंपॉर्टेंट. क्लास के बाद बैठ के अच्छे से पढ़, थोड़ा सा ज्यादा ही. अभी सुनो, अभी हैवी लीगल एक्सपेंस. आपका एक लॉयर है, आपके लिए केस लड़ता है, एक केस का जो 50,000 रुपए लेता है, आपने उसको 5 लाख देके रख दिया 10 केस का. वो 10 केस जरूरी है कि एक ही साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, आपको आइडिया नहीं है. आपके अंदाज से 3-4 साल का आपने पे करके रखा हुआ है. तो हैवी लीगल एक्सपेंस, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, हैवी रेनोवेशन एक्सपेंस. हैवी इज द कीवर्ड, दैट इज व्हाट? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. माइंड इट, इट इज नॉट एन एसेट. आपको क्लियर कट हिंट है, वो खर्चा है, वो एसेट नहीं, उसको बेच नहीं सकते. इसके लिए उसका दूसरा नाम क्या है? फिक्टिशियस एसेट. Deferred revenue expenditure is not a fixed asset. It doesn't have any tangible value. You can't sell your advertisement. ये ले मेरा खर्चा 3 साल का, कोई खरीदेगा? कोई लेगा लीगल फीस का खर्चा आपका? नहीं. You can't sell it. It is a fictitious asset. So how do you classify deferred revenue expenditure? It is a खर्चा. It is not an asset. It is not a fixed asset. It is a खर्चा. But the benefits will last for more than a. सब पता कैसे चलेगा देख के benefit more than a heavy. The link keyword is heavy. Okay, that's it. Cost
देखो फर्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ रेनकोट्स, अम्ब्रेलास फॉर एम्प्लॉइज who are given the same every 2 years. Half revenue, half every 2 years certain type. It's a revenue expenditure. It's a revenue expenditure हर 2 साल दे रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि वो कैपिटल, वो एसेट तो है नहीं. Is it clear? And it is not even deferred revenue. It is not even deferred revenue. किसी का फट फूट गया तो आपको हर साल देना पड़ेगा. नया एम्प्लॉय आपको हर साल करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं कि एक बार क्या 3-4 साल तक बेनिफिट दे रहा है. Got it? So it is a revenue expenditure. It is a revenue expenditure. शॉर्ट में लिख दो RE, revenue expenditure. रीजन होगा recurring in nature. Recurring in nature, small value, you can add it. Okay? Recurring in nature, small value. मैंने को अभी भी बोला deferred के लिए hint क्या है? Repairing of building done every year. खतरनाक. Repairing of building done every year, it's a revenue expenditure. Reason क्या है? शॉर्ट में लिख दो recurring in nature. Recurring in nature. Recurring in nature. Third, wages paid for construction of building extension. You know what is building extension? 2 माले का बिल्डिंग 5 माले का किया, A विंग का B विंग बनाया, that is extension. So asset. Asset पेड कर हुआ तो capital expenditure लिखो capex. Capital expenditure. Reason क्या लिखेगा? Non-recurring, incurred on manufacture of fixed asset. Manufacture of fixed asset. Short में लिख दो manufacture of fixed asset. Non-recurring. खुद को समझ में आए वैसा शॉर्ट फॉर्म यूज करना. अभी तो लिख रहा है, बाद में देखेगा ये क्या लिखा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड. ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग गुड्स. रेवेन्यू रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग इन नेचर. कैरेज फॉर ब्रिंगिंग फर्नीचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर. वही परचेज मैन्युफैक्चर ऑफ फिक्स्ड एसेट. Purchase, manufacture of fixed asset, non-recurring. Purchase, manufacture of fixed asset, non-recurring. मिला? Next, cost of building, capital expenditure. Cost of building, capital expenditure, long-term benefits, non-recurring. Long-term benefits, non-recurring. Repairs of old furniture. Revenue expenditure. Very good. Repairs of old furniture. Repairs of old furniture. Revenue expenditure. No future benefits. Reason होगा no future benefits. Revenue के लिए non recurring मत लिखो बेटा. Hello. Revenue is recurring, but better reason है no future benefits. यहाँ पे. Then expenses incurred on installation of a new machine. Capital expenditure सबको जा रहा है बीच में. Capital expenditure. Manufacture of fixed asset, long-term benefits. Manufacture of fixed asset, long-term benefits. Concept clear रखो. Future में benefit है capital expenditure. नहीं है revenue. Okay? ये AC है ना, ये मेरा asset है. मैं अभी तो लग रहा है कि 8 साल चलेगा. कितना चलेगा? कल उठ के शॉर्ट सर्किट हो गया, ये जल गया और इनरिपेयरेबल है, मैं इसको रख सकता हूँ ऐसे? और मैंने तो सोचा था 8 साल चलेगा, मैंने तो सोचा नहीं. The moment the future benefits are expired, this will be dumped in P&L. समझ में आया? Revenue expenditure. खोखला एसेट आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते. ओके? और आप देखा राजू वाला जो मैंने आपको बोला ना, बैड बॉय बिलियनर्स, he had shown 4,500 crore cash, fake cash in the bank. 4,500. वो क्या करता था? सिफर ऑफ करता था, कैश निकालता था. बिजनेस एंट्री में था, एंट्री में था कैश. बिजनेस से कैश निकालता था और रियल एस्टेट बूम तभी चल रहा था, तो प्रॉपर्टीज में डालने का सोचा. ये सोचा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाएगा, मैं बेच के वापस बिजनेस में डाल देगा पैसा. लेकिन आया सब प्राइम क्राइसिस 2007. बड़ा सा सब प्राइम क्राइसिस आया, तभी सब प्रॉपर्टी का डाउन, प्राइसेस सब गिर गया. उसका सब प्रॉफिट तो दूर का है, लॉसेस में चला गया पैसा, एंड आया ही नहीं वापस बिजनेस में.
4,500 and he did suicide, or I think he did suicide, I think committed suicide in the jail. मर गया वो रामलिंगा राजू सत्यम. तभी फिर सत्यम का शेयर प्राइस उस दिन, आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज वाचिंग द प्राइस, सामने था CNBC, and one day the price fell down from some 110 से लेके 12-14 रुपए का हो गया था one day. शेयर प्राइस सत्यम कंप्यूटर वन ऑफ द गुड, नहीं उसको फिर महिंद्रा शाना था, महिंद्रा ने उसको बोलते हैं हॉस्टाइल मार्केट टेक ओवर. जैसे जैसे पब्लिक बेचते गए, क्योंकि कंपनी वाज गुड, he did this scam, but the company and business and all contacts, आपका जो क्लाइंट्स थे, शेयर होल्डर, अपना क्रेडिटर्स थे, डेटर्स थे, they were all good. तो महिंद्रा ने बहुत सारा शेयर एक्वायर कर लिया. अब वो मर्ज हो गया और महिंद्रा टेक जो है टेक महिंद्रा, दैट इज उसने अपने कंपनी में ले लिया उसको. सर आपने ले लिया था शेयर. मैं तभी लर्निंग में, आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम. ठीक है, पैसा ही नहीं. चलो नाउ wages paid to workers क्या होगा? Revenue expenditure, recurring in nature, no future benefits. Wages paid to workers, revenue in nature. Okay, revenue expenditure, recurring. Expenses for complete overhauling of a machine. Overhauling is repairs. Complete overhauling of a machine, revenue expenditure. It is still revenue. All of you got it? So complete over, हाँ भाई, complete overhaul. ऐसा कुछ बोल रहे हैं फ्यूचर फ्यूल एफिशिएंसी, बेटर मेंटेनेंस, बेटर एफिशिएंसी, कुछ नहीं, नो फ्यूचर बेनिफिट. सो कंप्लीट ओवरऑलिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो फ्यूचर बेनिफिट्स, नो फ्यूचर बेनिफिट्स, नो फ्यूचर बेनिफिट्स. इज दिस क्लियर? Repairing expenses of a second-hand machine purchased. Why? Purchase. Incurred on purchase or manufacture of a fixed asset. Capital expenditure incurred purchase or manufacture of a fixed asset, long-term benefits. Mila? So, next. Cost of replacing a worn-out but costly part of a machine. Still a revenue. तो कितना भी कीमती पार्ट क्यों ना, कितना भी पैसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पार्ट क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है. इज इट एडिंग सम फ्यूचर वैल्यू? इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो फ्यूचर बेनिफिट्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो फ्यूचर बेनिफिट्स. 12th वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो फ्यूचर बेनिफिट्स. कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कॉपीराइट. कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट. Expense incurred on purchase of a fixed asset. Copyrights are not only for logo design, उसमें भी रहता ही है, but ये जो है ना TV, songs, serial, picture, telecast rights, books, novels, rights reserved, copyright reserved लिखा रहता है. Then अभी तो सब copyright का धज्जिया उड़ गया, देखा ये वीक में Cedance 2.0 किसने किया है? फॉलो. चाइना इज लॉन्च AI, ओपन AI का Cedance करके एक सॉफ्टवेयर है, Cedance 2.0. उसमें आप रियल टाइप का बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज, यू जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन एंड इट क्रिएट्स एक्चुअल हॉलीवुड का पिक्चर. अभी तो 15 सेकंड क्लिप्स ही बना सकता है वो, लेकिन अगर वो बड़ा बड़ा के ऐड कर करके कोई पड़ गया पीछे, तो एक्चुअली ये जो आयरन मैन है या फिर अपना कैप्टन अमेरिका है या कौन सा था एवेंजर्स है, लिटरल सेटिंग्स, एक्चुअल कैरेक्टर एंड व्हाटएवर यू वांट टू गिव द इंस्ट्रक्शन. देयर वाज अ क्लिप आई सॉ, उसमें सुपरमैन इज फाइटिंग विद बैटमैन एंड सुपरमैन इज फाइटिंग विद कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन इज कमिंग इन बिटवीन, मतलब इट इज लाइक मार्वल वर्सेस डीसी. उसने पूरा पिक्चर बना दिया. इट वाज अ क्लिप ऑफ 30 सेकंड, बट लिटरली यू विल फील लाइक अ हॉलीवुड मूवी. और एक सीन बहुत वायरल हुआ है, सर नाम बोलो या मूवी. Cedance 2.0. इंस्टा अकाउंट बनवा. और
एक क्लिप था, यू नो ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, वो दोनों का फाइट सीन बताया। एक्चुअली दे आर फाइटिंग, यू वोंट फील अ डिफरेंस, तो लग रहा है वही फाइट कर रहा है। इट्स अ सीन इन द मूवी विद बैकग्राउंड म्यूजिक, विद ऑल स्पेशल इफेक्ट्स, एवरीथिंग। वो सिंपल हो गया। चलो बट दैट, ये देखो ये चीजें तो बहुत चल रही है, मीम्स वगैरह। I'll share the links on the group, आप देखना आप लोग। अभी एक सीन था उसमें वो बिल गेट्स, वो ऊपर है वाला कौन है वो, सैम ऑल्टमैन, बिल गेट्स और तीसरा वो बैठा है गूगल वाला सुंदर पिचाई। एंड इट इज अ सीन रिक्रिएटेड फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो लोग रेस्टोरेंट में बैठा रहते ना, वो बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में पता है, वो वाला सीन। दैट इज ऑल मीम, दैट इज वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज। ये तो सीन ऐसा क्रिएट किया कि लिटरली वो हॉलीवुड मूवी में चल रहा है। तो अभी फटाफट है उनका, हमारा गया जॉब। ओके, तो अभी एक दूसरे पे केस कर रहे हो। Now, चलो, cost of acquiring copyrights किया हमने। Okay, now 14. Please be quiet. 14. Heavy current repairs to the roof of the building, extending the usable life. Capital expenditure. What the reason why? एक मिनट, सुनो भाई, सुनो। अभी heavy current repairs to the roof, factory, building, extending its usable life. ये मैंने आपको बोला था, heavy बराबर, but it is not an expense. It is incurred on an asset to increase its useful life. तो ये क्या बना? future benefit. Capital expenditure because future benefits. Deferred कब होगा? It is not an asset. वो खर्चा है, प्योर एक्सपेंस है वो। सुना? एसेट पे खर्चा नहीं हुआ है, प्योर एक्सपेंस है। हेवी एडवर्टाइजमेंट, हेवी लीगल, हेवी रिनोवेशन, इज इट क्लियर? खर्चा ही हो, एसेट पे नहीं हो रहा। नाउ दिस इज व्हाट 14. future benefits. Alterations to a cinema hall in accordance with municipal laws. Alteration to cinema hall in accordance with municipal laws. अब मैंने अभी एग्जाम्पल लिया फायर एक्सटिंग्विशर वाला। म्युनिसिपैलिटी ने बोला जग मार के फायर एक्सटिंग्विशर रख लेगा, रखो। फ्यूचर बेनिफिट्स है? No future benefits, revenue expenditure. मिला? Next. पढ़ने को दो। Repainting of a building. Revenue. Repainting. खरीदा है क्या बिल्डिंग अभी? Regular repainting. खराब बिल्डिंग को रिपेंट किया, ओपड़ी सब निकल गया था, उसको रिपेंट किया, जितना है उतना ही लाइफ है। नो फ्यूचर बेनिफिट्स, इज इट क्लियर? उसका बेसिक रिपेयर्स, बेसिक मेंटेनेंस आर ऑल रेवेन्यू। ओके, नो फ्यूचर बेनिफिट्स, समझ में आ रहा है इधर तक? रिप्लेसमेंट नहीं, सारा नहीं कर रहे, वेट बता रहा। रिप्लेसमेंट वी आर डूइंग टिल, आई टेल यू 20। चलो, रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओपन ट्रक विद अ replacement of an open truck with a refrigerated body. सोचो, ओपन ट्रक को रेफ्रिजरेटेड बॉडी, कोल्ड स्टोरेज बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर. गॉट द लॉजिक? व्हाई? नाउ यू कैन ट्रांसपोर्ट मोर आइटम्स, पेरिशेबल आइटम्स, हाई वैल्यू आइटम्स, प्रॉफिट्स विल इंक्रीज. व्हाट द डिफरेंस? सारे ट्रक्स में कोल्ड स्टोरेज रहता है क्या? सिलेक्टेड में रहता है ना.
जिसमें रहते हैं उसमें ज्यादा वैल्यू वाले रहते हैं, कम वाले वाले। इंक्रीज इन फ्यूचर बेनिफिट्स, राइट? इंक्रीज इन फ्यूचर बेनिफिट्स। नेक्स्ट, replacing wooden platform of a machine with a concrete one. Capital expenditure, increase in life, increase in future benefits. Increase in life, increase in future. लकड़े का प्लेटफॉर्म था, कंक्रीट का बना लिया। Then, replacing petrol engine of a car with diesel engine. Capital expenditure, cost reduction, savings and ये जो engine का replacement है ना, हमेशा capital expenditure ही है। चाहे पेट्रोल का सीएनजी हो, सीएनजी का डीजल हो, डीजल का पेट्रोल, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इंजन रिप्लेसमेंट इज ऑलवेज व्हाट? कैपिटल फ्यूचर है। क्योंकि अभी देखो, पेट्रोल का डीजल किया, खर्चा कम हुआ, पेट्रोल का सीएनजी किया, खर्चा कम हुआ, डीजल का पेट्रोल किया तो भी एफिशिएंसी बढ़ता है। ओके, अभी कोई उसका काम है, उसको स्पीड है या हैवी फास्ट पिकअप चाहिए, चढ़ना उतरना इतना नहीं है, बट उसको एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, तो वो डीजल का पेट्रोल भी कर व्हाटएवर इट। ओके, देन प्लांट रोज पुशेस आउटसाइड मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफिस। रेवेन्यू गमला लगाया, इज ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर है? नो फ्यूचर बेनिफिट्स रिकरिंग, नो फ्यूचर बेनिफिट्स रिकरिंग। ओके, Surabhi, we are stopping at this point. We did 1, 2, 3 and 6, right? Next class, that is mostly on next Tuesday. If there is any change, I'll message. I'll be discussing revenue and capital receipts plus company related expenses. जो आगे वाला part है. It's a very important class. Don't remain absent. Next class.